welcome my dear student of class 10th. Today your new session of pair of linear equation of two variables. Yesterday we discussed question number 4th of exercise 3.5. Now we discuss question number 5th of fourth question, fifth part of fourth question, that is very important question. It is also very important question. Point view of examination. The area of rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and width is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and the width by 2 unit, it increase 67 square unit. Find the dimension of a rectangle. उसने कहा एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है कब? जब लेंथ 5 यूनिट कम करते हैं और विड्थ को 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं। और अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं और विड्थ को 2 यूनिट कम करते हैं तब एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन मींस लेंथ एंड विड्थ फाइंड आउट करनी है हमें। लेट द लेंथ इज x and width is y. Okay my dear. Now area of rectangle, that is length into width, x into y, therefore xy. Now first case उसने कहा लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, यानी लेंथ कितनी हो जाएगी? अब लेंथ इज रिड्यूस बाय, पहले x थी कम हो गई 5 यूनिट, तो x माइनस 5 यूनिट एंड विड्थ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी विड्थ y प्लस 3. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट केस है, इट इज अवर फर्स्ट केस. एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू विड्थ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने कहा पहले से 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कम हो जाता है, यानी पहले xy था, xy से 9 कम. कब? जब लेंथ x माइनस 5 है एंड विड्थ इज y प्लस 3. xy माइनस 9 मल्टीप्लाई कीजिए, xy 5y प्लस 3x, 3 5 जा 15 प्लस माइनस माइनस xy से xy कैंसिल, 3x माइनस 5y माइनस हो गया प्लस का 3x माइनस 5y 15 minus 9, that was 6. This is the first equation. Now we solve for second case. What is the second case? If we increase the length by 3 unit, length 3 unit को increase करते हैं, यानी x plus 3 and width 2 unit increase करते हैं, therefore b is 5 plus 2. Is it clear? Now area is clear. Now find the area of rectangle, length into width. He says that area increase by 67 square unit. पहले से 67 यूनिट बढ़ जाता है. पहले कितना था? xy से 67. कब? When length is x plus 3 and width is y plus 2. Is it clear my dear? Now solve this equation. xy plus 67, x को मल्टीप्लाई कीजिए, xy plus 2x, 3 की मल्टीप्लाई दोनों से 3y plus 3 to 6. xy से xy कैंसिल. ये मल्टीप्लाई समझ आई आपको? पहले x की y से और 3 से की, फिर 5 माइनस 5 की y से और 3 से मल्टीप्लाई. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ 2x प्लस 3y प्लस का 67 माइनस का हुआ, 2x प्लस 3y 67 माइनस 6, therefore 61. This is the second equation. Now you solve it by any method, by elimination, by cross multiplication and by substitution method. Then when we solve x and this equation, we find the value of x and y, where x is length and width is y is width of rectangle field. Is it clear my dear? Find out कर लेंगे आप इसे. x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो लेंथ होगी और width y की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो विड्थ होगी आपकी. Is it clear? Solve it. Do it. Is it clear my dear? This is a very important question for point of view of examination. Now next topic is equation reducible to the pair of linear equation in two variable. टू वेरिएबल को रिड्यूस करके पेयर इक्वेशंस की कैसे सोल्व करना है हमें, ये हम बताएंगे. देखिए वहाँ पर बहुत कम अब तक बोर्ड्स में आया कि रिड्यूसेबल करके चेंज करके आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, अब तक बहुत कम आया है. ठीक है, तो वहाँ आपकी मर्जी होगी. मैं रिड्यूसेबल भी सिखाऊंगा और विदाउट रिड्यूसेबल भी करके दिखाऊंगा आपको इसको. ठीक है, चलिए आइए इसे सोल्व करते हैं. जैसे एग्जाम्पल 17 है, चलिए यही लीजिए. What is example 70? Solve the linear equation 2 upon x by 3 upon y is equal to 13. 5x minus 4y is equal to minus 2. This is the first equation. This is the second equation. Now we solve. हालांकि इसमें सिर्फ ये लिखा है कि solve by reducible method, लिखा नहीं है.
तो हम कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे अभी हम अब तक सिंपल सोल्व करते आ रहे थे ऐसे भी सोल्व करते हैं, लेकिन अभी हम मुझे सिखाना है आपको कि डिविजिबल कैसे सोल्व करना है। आपको x 1/x 1/x 1/y 1/y सेम नजर आ रहा है, तो इसको कुछ लेट कर लेंगे। डिविजिबल में हम किसी चीज़ को लेट करते हैं जो सेम आते हैं, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू u मान लिया मैंने, एंड 1/y इज इक्वल टू v। इज इट क्लियर बाय डियर? नाउ पुट हियर 2 into 1/x यानी 2u हो जाएगा, 3y 1/y is v is equal to 30। दैट इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई वो इक्वेशंस, ठीक है। 5 1/x is u minus 4v is equal to -2, that is the first। now you solve it by any method, substitution method, elimination method, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, आई यूज एलिमिनेशन मेथड यार। मैं सेम करूँगा एक वेरिएबल को, चाहे v को करूँ चाहे u को करूँ, मैं v को कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके कोफिशिएंट को इससे कर दो, इसके कोफिशिएंट को इससे कर दो, सबसे आसान तरीका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, 4 2 8 4 3 12 13 4 52 now 3 5 15u 3 4 12 3 2 6। दिस इज द सेकंड सिक्स्थ इक्वेशन। नाउ वी सॉल्व इट। प्लस माइनस दोनों इक्वेशन, दोनों साइन सेम है, अलग अलग है सॉरी, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कैंसिल आउट। 18 15 20 15 माइनस 52 माइनस 6 46। नाउ u इज इक्वल टू 46 अपॉन 23, ये अपॉन में आएगा 3 2 जा, तो u इज इक्वल टू 2। अब क्या होता है बेटे, यहाँ पर एक चीज़ रोकूंगा मैं आपको कि बच्चा क्वेश्चन यहीं तक छोड़ देता है, नंबर कट जाते हैं। क्यों? हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x और y की, और हमने किसकी फाइंड की, u की, तो फिर यहाँ तक कैसे छोड़ रहे हैं क्वेश्चन। नाउ आपने जो लेट किया था u को 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इज इट क्लियर? आपने पूरा करना है क्वेश्चन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x या u, कहीं पे भी रखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इक्वेशन u की वैल्यू रख देते हैं, v निकलेगा हमारे पास। इक्वेशन थर्ड में रख रहा हूँ, 2 into u, what is u 2, 3v is equal to 30, 2 to 4 plus 3v is equal to 30। प्लस का बजाय इसको लेगा माइनस का 13 माइनस 4, 3v is equal to 9, तो v is equal to 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो v is equal to 3। बट हमें वैल्यू फाइव की फाइंड करनी है, v की नहीं, ठीक है। पुट हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, सॉरी v 1/y is equal to 3, तो y is equal to क्या आएगा 1/3। Is it clear my dear? So this is the method to divisible the equations। समझ आया आपको कि डिविजिबल कैसे करना है आपको, ठीक है। और हम इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, तो देखिए मैं सिंपल तरीके से भी करके आ सकता हूँ, अगर मेरे को वहाँ पे ना लिखा हुआ कि कैसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पे आइए, एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट पार्ट। हालांकि इसमें अब उसने लिख दिया है सॉल्विंग द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ रिड्यूस करके करना, उसने लिख दिया है यहाँ पर, हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको अपने तरीके से सिंपल करके दिखाऊँ, अगर 1 ना लिखा हुआ है, बोर्ड में ना लिखा हुआ है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। 1/2x इज इक्वल टू 1/3y इज इक्वल टू 2, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। 1/3x 1/2y इज इक्वल टू 13/6, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। इसे एक को सेम करेंगे, y को कर लें, तो यहाँ पे 1/3 है, वहाँ पर 1/2, यहाँ तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहाँ पर 1/3। सिंपल, रिड्यूसेबल नहीं करा मैंने, लेट नहीं किया मैंने, 1/x नहीं तो लेट करता 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। बट मैं सिंपल सोल्व कर रहा हूँ, 1/4x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली 1। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 की 1/2 से 2 कैंसिल। नाउ 1/9x प्लस 1/6y, यहाँ पे हुआ 13/8। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। नाउ सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड और एनी अदर मेथड। थर्ड -4, सेम साइन है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, दैट इज कैंसिल, ठीक। 1/4x में से 1/9x रफली आपने करना है, माइनस करेंगे 36 एलसीएम, 4 9 जा 9 4 जा, x मत लीजिए, कोई जरूरत नहीं। 5/36, दैट इज 5/36x। हियर 1 minus 13/18, now LCM is 18, 18 minus 13, that is 5/18, that is 5/18, 5 minus 5 cancel। Now cross multiplication 36x is equal to 18, तो x is equal to 18/36। अब मैं यहाँ गलती उठाऊँ, रुक के आपको
बच्चा क्या करता है, ये बड़ा है ना इसलिए ऐसे लिख देता है, ऐसे 36 अपॉन 8। बहुत बच्चों की गलती होती है बोर्ड में, कई बच्चों को देखा है मैंने, अच्छे से अच्छा जिसके 80 मार्क्स भी आ रहे हो तो इसकी वजह से आधा मार्क्स कट जाता है बच्चे। क्यों? वो जैसे 36 बड़ा है इसलिए वो उससे नीचे जाता है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके पास जो कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा, ये ध्यान रखना। जो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इसके नीचे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर माय डियर? 18 1 जा 18 2 जा, therefore x is equal to 1/2 फाइंड आउट। एक ही कितने आसानी से निकाल लिया। नाउ पुट द इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कहीं पे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको 1/2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की 1/2 प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 1 होकर जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 1/3y इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 3y। अब फिर वही गलती बच्चा क्या करता है, वो बेटे गलत है ये, ठीक है। 1/3 जो कोएफिशिएंट है जिसकी वैल्यू निकालनी वो नीचे जाएगा। इज इट क्लियर माय डियर? तो y इज इक्वल टू 1/3, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.6। आपके लिए जो होमवर्क है वो सिर्फ इतना है कि आप पिछले वाले चैप्टर की एक्सरसाइजें या पिछली एक्सरसाइजें रिपीट करते रहिए, प्लीज़, भूलने का नहीं है बिल्कुल, ठीक है। जो भी टेस्ट होगा किस भी चैप्टर का वो हमें बता दो। इज इट क्लियर माय डियर? प्लीज़ सीरियसली लें सबको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर।